Today we are learning about the functions of the election commission. The previous class we were discussed about the election commission and who appoints the election commissioner and what are their main objectives. And this today we are discussing about the functions of the election commission. And the first function of the election commission is preparing the voters list. And you know that every Indian citizen who has completed 18 years old of age has a right to vote. So आपको पता है कि जो whoever it is who complete 18 years 18 साल के बाद हर एक आदमी को वोटिंग राइट है. टू एक्सरसाइज दिस वोट राइट टू वोट सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट. तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वोटर्स लिस्ट में अपना नाम ऐड करना पड़ेगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. सो प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट एंड टू ऐड द वोटर्स नेम इनटू द वोटर्स लिस्ट. जिसको 18 साल कंप्लीट हो गया उसका नाम वोटर्स लिस्ट में ऐड करना है. एंड द पीपल हु डाइड, जो लोग मर गए उसका नाम वोटर्स लिस्ट में से निकालना है. It is the responsibility of election commission to prepare the list eligible voters, update the existing voters list and include the names of new voters. The election commission has authority to issue identity cards and the to the voters. तो इसलिए तो हमको क्या है, ये नाम ऐड करना है और निकालना है. एट द सेम टाइम दे हैव द राइट टू दे आर द अथॉरिटी टू इशू द आइडेंटिटी कार्ड. यू मे सी योर parents' identity card, voters' identity card that is there, and that is actually issued by the election commission. And next one is decide the timetable and the program of elections. The conduct of election entirely responsibility of the election commission. The election commission decides when to conduct election and how many stages to hold election in every state. तो ये इलेक्शन कमीशन है, ये कब कंडक्ट करना है, when we have to conduct the election. That is the responsibility of the election commission, and they are the supreme authority of election and they will handle it. The election commission decides when to conduct election and how many stages to hold the election in every states. हर एक स्टेट में कितना होल्ड करके रखना है, ये सब चीज़ इलेक्शन कमीशन का responsibility. And next one is the scrutiny of the application of candidates. As we know that after election date are declared, election date declare करने के बाद क्या हो जाएगा, every political party selects the candidates to contest the election. तो उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज उस लोगों का कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा, कौन इलेक्शन में स्टैंड कर रहे उसका नाम डिक्लेयर करेगा. सम कैंडिडेट कंटेस्ट द इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पार्टी. कुछ लोग कोई बिना पार्टी का सपोर्ट में से खड़े रहेगा. दे आर नॉट एट ऑल पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. इफ ए पर्सन इज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इलेक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज ऑल्सो अलाउड. तो कोई भी पार्टी का बिना सपोर्ट से भी हमको खड़े रह सकता है. हाँ, सो दैट इज द अनदर वन. एंड नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हाउ टू फुलफिल एप्लीकेशंस विच इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओन सेल्फ. तो ये जो लोग इलेक्शन को खड़े रहा है, कैंडिडेट्स खड़े रहा है, वो सब लोग उस लोगों का डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देना है. टू फुलफिल देयर election commission, to give the information to election commission. But the election commission scrutinize all the applications. Scrutinize means recheck, verify, ये सब चीज़ verify करेगा and they will decide that the person is eligible or not. तो उस लोग चेक करेगा कि या ये पर्सन इलेक्शन में खड़े रहने के लिए एलिजिबल है क्या नहीं. So that is called the scrutiny of the application of the candidates. And the election commission later will allow them to stand if they are eligible. The person who is part of any criminal affairs of a background of crime, he not eligible for the election, standing in the election. तो एक आदमी को क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो ऐसे कोई भी क्राइम में पार्टिसिपेट हुआ है, तो वो लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये नहीं अलाउ नहीं करेगा. द नेक्स्ट वन इज give recognition to political parties. We have multi-party system in our country. New parties continue to be
formed split in the parties result in the formation of new parties. All political parties are required to be recognized by the election commission. तो नेक्स्ट है इलेक्शन पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ को राइट देता है, तो वर्क करने के लिए राइट देता है, वो भी इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है. सो दैट ड्यूटी इज एक्चुअली डन बाय इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ. एंड द स्प्लिट ऑफ द पार्टीज़, एक पार्टी स्प्लिट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कांग्रेस में बहुत ज़्यादा स्प्लिट है, वो हर एक ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन ये इलेक्शन कमीशन ही करेगा. एंड इफ एनी न्यू पार्टीज आर एमर्जिंग, दैट इज ऑल्सो गिविंग वर्किंग पावर इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ. वो वर्क करने के लिए, वो पार्टीज़ का वर्किंग करने के लिए भी राइट इलेक्शन कमीशन ही दे देगा. एंड फॉर एग्जांपल द न्यू पार्टीज, वन ऑफ द न्यू पार्टीज आम आदमी पार्टी इज़ वन ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड पार्टी, तो वो पार्टी का भी राइट इलेक्शन कमीशन देता है. एंड नेक्स्ट द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलाउड्स इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टी को जो कुछ सिंबल्स देना है वो सभी सिंबल्स इलेक्शन कमीशन ही दे देगा. फॉर एग्जांपल कांग्रेस का यस और हाथ, और नेक्स्ट बीजेपी लोटस, ऐसे सिंबल्स भी ये इलेक्शन कमीशन देने वाला है. एंड द लास्ट वन इज टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स टू इलेक्शन. जो इलेक्शन में द इलेक्शन कमीशन has the responsibility to resolve any disputes that may arise regarding elections. Accordingly, to declare any candidate as disqualified or conduct a re-election in particular constituency in the responsibility of the election commission. तो एक जगह पे जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन के बारे में वो सब चीज़ इलेक्शन कमीशन को है. और इन्हें डिक्लेयर ऑफ कैंडिडेट आज डिस्क्वालीफाइड, कोई भी एक कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हो गया, उसका रीज़न क्या है, वो सब चीज़ इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड एट द सेम टाइम कंडक्ट री इलेक्शन करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन का राइट है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में. दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन.